નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? આપણે જોઈએ છીએ કે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં ઘણું બધું થંભી ગયું છે, પણ આપણે શિક્ષણને થંભવા નહીં દઈએ. તો આજે હું તમારી સામે હિન્દીનો પહેલો લેક્ચર ધોરણ 9નો લઈને આવી ગઈ છું. આપણે ધોરણ 8માં ઘણું બધું ભણ્યા છીએ. એમાંથી વ્યાકરણના અમુક ટોપિક, સંજ્ઞા, સર્વનામ, વિશેષણ, ભાવવાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા ડીપમાં ભણ્યા છીએ, બરાબર. ત્યારબાદ અવ્યય છે, એવું ઘણા બધા ટોપિક આપણે ભણી ગયા છીએ. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ વર્ણો છે એ આખા નથી. જેમ કે એક વ્યંજન અને સ્વર મળીને આખો વર્ણ બને છે, તો એ વર્ણ મળીને એક શબ્દ બને છે, અને એ શબ્દ મળીને એક વાક્ય બને છે, અને એક વાક્ય મળીને એક પેરેગ્રાફ બને છે, અને એક પેરેગ્રાફ મળીને આખો એક લેસન તૈયાર થાય છે. તો ભાષામાં ખાસ કરીને વ્યાકરણ છે એ ખૂબ જ આવશ્યક બાબત છે. તો આપણે હિન્દીમાં ધોરણ 9ના હિન્દીમાં આપણે પાઠ્યપુસ્તક છે. મારે એક તમને કહેવાનું છે કે જ્યારે પણ તમે આ વિડીયો જોતા હોય ત્યારે સાથે સાથે તમારા ધોરણ 9ની હિન્દીની ટેક્સ્ટ બુક સામે રાખો, અને એમાં પેજ નંબર 11 ઉપર આ મુહાવરાનો ટોપિક છે જે તમે સાથે રાખજો, જેથી કરીને તમને આ સમજવામાં બેટર રહે. તો હિન્દીમાં ધોરણ 9માં આપણે જોઈએ કે ભાઈ ઘણા બધા વ્યાકરણના આમ તો 7 કે 8 ટોપિક આવે છે. એમાંનો આજે એક પહેલો ટોપિક છે જે છે મુહાવરે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ હિન્દી ભાષા છે કે ગુજરાતી ભાષા છે, જો એમને એમ સાધારણ વાક્યો લખતા જાય અથવા બોલતા જાય તો એટલું એટ્રેક્શન એમાં રહે નહીં, કાંઈ અલગ ન લાગે. એટલા માટે આ મુહાવરા છે એ આવશ્યક છે. કોઈ પણ વાક્યમાં એવો કંઈક મુહાવરો લખેલો હોય જેથી કરીને આપણને એ સાંભળવો અને વાંચવો પણ આપણને ગમે. કોઈ પણ વાક્ય છે આપણને વાંચવું કે સાંભળવું ગમે. તો મુહાવરાને આપણે ગુજરાતીમાં રૂઢિપ્રયોગ તરીકે ઓળખીએ. જેમ કે એક સાંધ્યે ત્યાં 13 તૂટે, તો હવે એનો શાબ્દિક અર્થ કે કોઈ પણ કપડું છે એક જગ્યાએથી ચીરાઈ ગયું છે અથવા ફાટી ગયું છે, જો એને સાંધીએ ત્યાં તો બીજા 13 જગ્યાએથી ફાટી જાય છે, આવો એનો શાબ્દિક અર્થ થયો. પણ નહીં, આપણે એ શાબ્દિક અર્થ નથી લેવાનો. એક સાંધ્યે ત્યાં 13 તૂટે એનો મતલબ એવો લેવાનો છે કે કોઈ પણ મનુષ્યના કે કોઈ પણના જીવનમાં એક સમસ્યા આવે, એ સમસ્યાનું હજુ તો નિરાકરણ થયું હોય અથવા તો ન થયું હોય, ત્યાં તો બીજી ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવીને ઊભી રહી જાય છે. તો ઠીક એ જ રીતે હિન્દીમાં પણ મુહાવરા છે એ આવે છે, અને મુહાવરાને લીધે એમાં 4 ચાંદ લાગી જાય છે. વાક્ય હોય કે કોઈ પણ પાઠ હોય કે પેરેગ્રાફ હોય. તો મુહાવરા આપણે કોને કહેશું? ભાઈ તમને એમ થાય કે ભાઈ ઘણું બધું લખેલું છે, એમાં મુહાવરો કોને કહેવો? ઘણું બધું લખેલું આવે છે, એમાં કયા શબ્દને અથવા તો કયા એવા વાક્યને આપણે મુહાવરા તરીકે લેવો? તો મુહાવરાની સૌથી પહેલાં વ્યાખ્યા અથવા પરિભાષા આપણે જોશું. તો વ્યાખ્યા કે પરિભાષા આ મુજબ છે: जब कोई वाक्यांश अपना साधारण या शाब्दिक अर्थ छोड़कर, साधारण या शाब्दिक अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ व्यक्त करता है तो उसे हम मुहावरा कह सकते हैं या कहते हैं. तो वाक्यांश, देखिए यहाँ पे वाक्यांश लिया गया है, पूरा वाक्य हमें नहीं बताया गया है. एक वाक्य में एक वाक्य का थोड़ा सा अंश उसे कहते हैं वाक्यांश. तो कोई भी एक छोटा सा वाक्यांश होता है, वह अपना साधारण या शाब्दिक अर्थ नहीं, लेकिन उसका कोई अलग ही विशेष अर्थ जो व्यक्त करता है उसे ही हम मुहावरा कहते हैं. जैसे कि रात दिन एक करना, रात और दिन एक करना. अब उसका शाब्दिक या साधारण अर्थ क्या होगा? रात और दिन को एक कर देना. तो हम सोच सकते हैं कि रात और दिन को हम कभी एक कर सकते नहीं, लेकिन यह इसका शाब्दिक अर्थ है. लेकिन हमने व्याख्या में देखा है कि जब कोई वाक्यांश, यानी कि यह रात दिन एक करना एक वाक्य में से लिया हुआ एक छोटा सा अंश है, ना तो एक शब्द है ना ही एक वर्ण है, 2-3 पद मिलाकर एक वाक्यांश बनता है. यह वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ यानी कि रात और दिन को एक करना यह दर्शाता है, लेकिन हमें यह शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है. इसकी जगह हमें इसका एक विशेष अर्थ, ये रहा उसका विशेष अर्थ कि रात दिन एक करना, इसका मतलब होगा कि कड़ी मेहनत करना. कड़ी मेहनत करना यानी सख्त मेहनत करना, हार्ड वर्क करना. हम
एक छोटा सा वाक्य लेंगे कि शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिए। तो शिशुपाल है वह एक न्याय मंत्री है, वह एक अपराधी को ढूंढता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए वह इतनी कड़ी मेहनत करता है कि न तो उसको दिन का ख्याल रहता है न ही रात का ख्याल रहता है। तो उसे कहते हैं हम रात दिन एक कर देना। जैसे कि हमने देखा कि वह उसका शाब्दिक अर्थ कुछ अलग होता है कि रात और दिन को एक कर देना, लेकिन यहाँ पे यह मुहावरा कुछ अलग यानी कि कुछ विशेष अर्थ व्यक्त करता है, जैसे कि कड़ी मेहनत करना। तो यह हुई मुहावरे की परिभाषा या मुहावरे की व्याख्या, यानी कि कोई भी वाक्यांश होता है वह अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ को व्यक्त करे, यानी कि कुछ विशेषता उसमें हो, उसे ही हम मुहावरा कह सकते हैं। ऐसे ही एक और मुहावरा है कि चिकना घड़ा। तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? हाँ, ऐसा घड़ा जो एकदम चिकना हो, एकदम स्लिपरी हो, या उस पर कुछ भी डाला जाए तो वो फिसल के नीचे गिर जाएगा, यह उसका शाब्दिक अर्थ होगा। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होगा कि किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर किसी भी बात का कोई असर ना हो, उसे हम कह सकते हैं यह चिकना घड़ा है। समझ में आ गया? यह रही मुहावरे की व्याख्या और उसके एक उदाहरण। अब हमें किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी वाक्य में अगर हमें मुहावरे का प्रयोग करना हो, एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा कि भाई एक मुहावरा है, उसका आप कोई अर्थ बताइए और उसी मुहावरे को फिर से एक वाक्य में उसका प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए हम सीधे सीधे प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए भी कुछ नियम है, कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए। जैसे कि मुहावरे के प्रयोग में कुछ सावधानियां, तो टोटल 5 सावधानियां हैं। उसमें से यह पहली है कि मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए, यानी कि मुहावरा जैसा है वैसा ही हमें वाक्य में लिखना या वाक्य में बोलना चाहिए, उसके शब्द हम बदल सकते नहीं है। यानी कि जैसा भी मुहावरा है उसमें हम कोई फेरफार कर सकते नहीं, जैसा ही रूप है उसी ही रूप में उसे लिखना चाहिए। न तो उसके शब्द बदले जा सकते हैं, न ही उसका अर्थ कोई भी हम बदल सकते हैं। जैसे कि अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन यह एक मुहावरा है, छोटा सा शब्द के 3 पद है, उसमें से बनाया गया एक मुहावरा है, अक्ल का दुश्मन। और इसकी जगह हमने जैसे कि यहाँ देखा है कि उसका मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए उसके रूप बदले जाते नहीं है या उसके शब्द बदले जा सकते नहीं है। तो अक्ल की जगह हम बुद्धि नहीं ले सकते और दुश्मन की जगह हम शत्रु, यानी कि अक्ल का शत्रु। वैसे देखा जाए तो शत्रु भी सही है, दुश्मन और शत्रु दोनों एक ही हुए, लेकिन यह उसका असली रूप है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का शत्रु उसका असली रूप नहीं है, क्योंकि शत्रु है वह शब्द बदल दिया गया है। दुश्मन और शत्रु हुए तो एक दूसरे के पर्याय ही, लेकिन शत्रु हम ले सकते नहीं है, क्योंकि हमें पहली सावधानी यह दिखाई गई है कि उसके असली रूपों में ही उसका प्रयोग करना चाहिए, और असली रूप है अक्ल का दुश्मन। तो कोई भी वाक्य में अगर इस मुहावरे का प्रयोग हम करते हैं तो वह अक्ल का शत्रु है ऐसा हम बोल सकते या लिख सकते नहीं है, उसकी जगह हमें अक्ल का दुश्मन ही लिखना पड़ेगा। उसी तरह एक और मुहावरा है 9 2 11 हो जाना। वैसे तो 9 2 11 हो जाना यानी हम सबको पता है कि भाग जाना, किसी परिस्थिति या किसी सिचुएशन से हम भागते हैं, डर के घबरा कर हम भाग जाते हैं, तो उसके लिए एक मुहावरा प्रयोग किया जा सकता है कि वह 9 2 11 हो गया। तो उसकी जगह हम 8 3 11 नहीं ले सकते। वैसे कहा जाए तो 8 और 3 मिलके 11 ही होते हैं, 7 और 4 मिलके भी 11 हो सकते हैं, यह उसका शाब्दिक अर्थ भी हो सकता है। लेकिन पहली सावधानी, पहले नियम को देखा जाए तो हम मुहावरे को उसके असली रूप में ही लिख सकते हैं, उसके रूप या उसके शब्द बदल सकते नहीं है। 9 2 11 होना ही हमें लिखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से घबरा कर, डर कर भाग जाना, उसे हम 9 2 11 हो जाना कहते हैं। यह रही पहली सावधानी कि मुहावरे का वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो असली रूप में ही करना चाहिए, उसके शब्द हम बदल सकते नहीं हैं। और यह रही उसकी दूसरी सावधानी कि मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। छोटा सा एक वाक्यांश है उसे हम मुहावरा कहते हैं, हमने देखा, और वह एक विशेष अर्थ प्रदान करता है या व्यक्त करता है। तो उस वाक्यांश को
अलग नहीं लिख सकते, या सिर्फ 9 2 11 हो जाना ऐसा लिख देने पर वह उसके पीछे बहुत सारी आकांक्षाएं जन्म लेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे कि कौन 9 2 11 हो गया, किस लिए हो गया, किससे बचकर वह भाग आया, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे। तो इसीलिए दूसरा नियम या दूसरी सावधानी है कि मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग वह अच्छे लगते नहीं है, या अलग हम लिख भी नहीं सकते। मुहावरे का अर्थ लिख सकते हैं लेकिन मुहावरे सिर्फ वाक्य में ही प्रयोग हो सकते हैं, अलग नहीं। जैसे कि कान काटना, यह भी एक मुहावरा है। अब कान काटना, उसका शाब्दिक अर्थ हम लेंगे कि किसी का कान काट देना, यह उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें कान काटना उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेकिन विशेष अर्थ, जैसे कि एक छोटा बच्चा है या एक छोटा बालक है, वह बड़े बड़े लोगों के कान काटता है, यानी कि उस बच्चे में कुछ विशेष लाक्षणिकता है, अद्भुत लाक्षणिकता है, उसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो बड़े बड़ों को भी उसको भी बंद कर सकता है, यानी कि उससे भी वह ऊपर कुछ ज्ञान उसके पास है। इसलिए उस बच्चे के लिए हम यह मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि वह बालक बड़े बड़ों के कान काटता है, यानी कि उस बालक में बड़े लोगों से भी ज्यादा बुद्धि है या अद्भुत उसमें लाक्षणिकता है। सिर्फ कान काटना यह लिखेंगे तो इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क आएगा कि कौन कान काटता है, किसके कान काटता है, क्यों काटता है, बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए तो सीधा हमें इसका अर्थ पता चल जाएगा कि एक छोटा सा बालक है, वो बड़े बड़े लोगों के कान काटता है, यानी बड़े बड़े लोगों से भी ज्यादा उसमें कुछ अद्भुत लाक्षणिकताएं है। यह रही 2 सावधानियां या 2 नियम। अब यह हुआ तीसरा नियम या तीसरी सावधानी कि मुहावरे के प्रयोग के समय पूरी परिस्थिति, समुचित परिस्थिति, पात्र, यानी कि जो भी वाक्य लिखते हैं, जिसके बारे में लिखते हैं वह पात्र, घटना, जो भी घटना घटित हुई है वह घटना, और प्रसंग, उस जगह का प्रसंग या कुछ भी हो उसका उल्लेख होना चाहिए। पहली सावधानी में हमने क्या देखा कि मुहावरे के हम शब्द बदल नहीं सकते। दूसरा तो कि मुहावरे अलग से नहीं लिख सकते, उसे वाक्य के साथ लिखना चाहिए, वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। और तीसरी सावधानियां, तीसरा नियम यह है कि मुहावरे का प्रयोग करते समय पूरी परिस्थिति को ध्यान में लेना चाहिए, जो भी कोई पात्र हो उसका भी उल्लेख होना चाहिए, घटना या प्रसंग का भी उल्लेख होना चाहिए, जिससे हमारे मन में या सामने वाले के मन में कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। जैसे कि यहाँ फिर से एक ही उदाहरण रिपीट किया है मैंने कि 9 2 11 होना, यह एक मुहावरा है। हमने देखा कि 9 2 11 होना यानी परिस्थिति से घबराकर, किसी भी चीज से डरकर भाग जाना, उसे हम कहेंगे 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मतलब 9 और 2 मिलकर 11 हो जाना, लेकिन नहीं, यहाँ इसका विशेष अर्थ है भाग जाना, किसी भी जगह से भागना, डर के या घबराकर भागना। तो तीसरी सावधानी है कि परिस्थिति, पात्र, घटना या प्रसंग, इन सब का उल्लेख होना चाहिए। सिर्फ हम लिख देंगे कि हिरन 9 2 11 हो गया, इससे हमारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हिरन क्यों 9 2 11 हो गया, हिरन क्यों भाग गया, किससे डर के भाग गया, कहाँ पे भाग गया, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि परिस्थिति, पात्र, घटना या प्रसंग सब बाबतों को इसमें उल्लेख होना चाहिए। तो वाक्य पहले हम बनाएंगे कि शेर को देखकर हिरन 9 2 11 हो गया। यह एक छोटा सा वाक्य हमने लिया है। इस वाक्य में पूरी जो यहाँ पे दिखाई गई है कि परिस्थिति, पात्र, घटना या प्रसंग सबका उल्लेख होना आवश्यक है। तो शेर को देखते ही हिरन, शेर और हिरन 2 पात्र लिए गए हैं, और शेर को देखते ही हिरन वहां से 9 2 11 हो गया, यानी कि वहां से वह भाग गया। अब हमें इस छोटे से वाक्य में पूरी जानकारी मिल जाती है कि शेर है वह क्या है, शिकारी है। शेर एक हिंसक प्राणी है, वह अपनी भूख मिटाने के लिए, शिकार करने के लिए कहीं जाएगा। उसे एक हिरन दिख गया तो हिरन को पकड़ने के लिए वह गया। तो हिरन है वह क्या है, वह शेर का भक्ष्य है, वह शिकार है, वह शेर का भोजन है। और हिरन को भी पता है कि शेर मुझे पकड़कर मार डालेगा और खा जाएगा। तो कोई भी प्राणी
जानबूझ के शिकारी के सामने नहीं जाएगा, जानबूझ के हिरन शेर के पास तो जाएगा नहीं कि आओ मुझे खा लो। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागेगा ही और शेर हिरन को पकड़ने के लिए आएगा। तो शेर को देखते ही हिरन घबरा कर अपनी जान बचाने के लिए डर के वहाँ से भाग जाता है। तो उसके लिए हम यह मुहावरा प्रयोग करेंगे कि शेर को देखकर हिरन 9 2 11 हो गया। अब इस वाक्य में पूरी परिस्थिति, पूरी घटना हमारे सामने है कि भाई शेर हिरन का शिकार करने के लिए आया, हिरन शेर को देख के डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से 9 2 11 हो गया। यानी कि पूरी परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग सबका उल्लेख इसमें होना चाहिए। अब चौथा नियम या चौथी सावधानी है कि मुहावरे का एक विलक्षण रूप होता है। मुहावरे ऐसे ही हम नहीं लिख सकते, ऐसे ही चलो दिमाग में आ गया और हमने लिख डाला, नहीं, ऐसे हम नहीं लिख सकते। मुहावरे का एक अलग ही रूप होता है, एक अनोखा रूप होता है, उसे इसी तरह लिख सकते नहीं है। जैसे कि आग में घी डालना, यह भी एक मुहावरा है कि कहीं पे आग लगी है, उसमें अगर हम घी डालेंगे तो वो आग एकदम भड़क जाएगी। कहीं भी धुआं उठ रहा है, उसमें हम थोड़ी सी हवा फेंकेंगे या फूकेंगे तो वह धुएं में से आग भड़क जाएगी। तो ठीक उसी तरह आग में घी डालना, इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि आग में घी डाल देना, लेकिन यहाँ पे इसका विलक्षण रूप है, उसका एक अलग ही रूप है कि किसी के क्रोध को भड़काना। क्रोध को भड़काना, अगर 2 मित्र है, आपस में कुछ अनबन हो गई है, एक मित्र दूसरे मित्र से खफा है या क्रोधित है, तो कोई तीसरा आके उसे ऐसी वैसी बातें सुना देता है अपने दूसरे मित्र के बारे में। एक तो वो पहले से थोड़ा क्रोधित है और उसके बारे में कुछ बातें बता देने से उसके क्रोध में बढ़ावा होता है, यानी कि उसका क्रोध है वो भड़क जाता है। तो उसे हम कहेंगे कि उसने आके आग में घी डाला, यानी कि आग में घी डालना। तो उसे कह सकते हैं हम कि उसके क्रोध को भड़काना। तो यह उसका विलक्षण रूप हुआ, एक अलग ही रूप हुआ। अब 5वीं और आखिरी सावधानी है कि मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। कि एक ही मुहावरा है, उसका हम अलग अलग रूप से उसके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मुहावरा है तो उसका एक ही वाक्य प्रयोग हो, अलग अलग तरीके से आप जो चाहे उस तरीके से उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक मुहावरा है पानी पानी होना। अब इसका शाब्दिक अर्थ कि किसी के ऊपर पानी डाल देने या पानी में गिर जाने से भीग जाना, या पानी पानी पूरा शरीर या कोई भी चीज़ वस्तु हो जाना। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें विशेष अर्थ इसका लेना है। जैसे कि बहुत लज्जित होना, पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना या शर्मिंदा होना, लज्जा में आ जाना। अब पानी पानी होना मुहावरा एक ही है, लेकिन उसका हम अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। कोई मुखिया जी है, उसकी कोई पोल भरी सभा में खुल जाएगी तो वह एकदम भरी सभा में लज्जित हो जाएंगे, और उसके लिए हम यह मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि मुखिया जी पानी पानी हो गए। वह पूरे भीग नहीं गए, लेकिन वह शर्म के मारे मतलब कि शर्मिंदा हो गए। और उसी ही मुहावरे का यानी कि पानी पानी होना, इसी मुहावरे का दूसरी तरीके से भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके ही छोड़ेगा। यानी कि तुम कुछ भी कहो, वह आज उसे शर्मिंदा करके ही रहेगा। अब साधारण भाषा में हम इसे लिख डालेंगे कि वह उसे शर्मिंदा करके ही छोड़ेगा, तो वो थोड़ा अलग लगता है। लेकिन इसके जगह हम ये लिखें कि तुम कुछ भी कहो, वह उसको आज सबके सामने पानी पानी करके ही छोड़ेगा। तो पानी पानी करना यह एक मुहावरा है। तो मुहावरे का, एक ही मुहावरे का हम अलग अलग ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो यह रही 5 सावधानी। सबसे पहले क्या लिया कि मुहावरा, एक कोई भी भाषा में, हिंदी भाषा में मुहावरे आते हैं, गुजराती में આપણે જોઈએ तो रूढ़िप्रयोग, कि मुहावरे की परिभाषा क्या है। तो कोई भी वाक्यांश हो वह अपना शाब्दिक या साधारण सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ व्यक्त करे तो उसे हम मुहावरा कह सकते हैं। जैसे कि हमने लिया कि चिकना घड़ा, रात दिन एक करना, ऐसे तो बहुत सारे मुहावरे हैं। होठ काटना, कान काटना, बहुत सारे मुहावरे हैं। तो यह मुहावरे का प्रयोग करने से भाषा में 4 चांद लग जाते हैं, वाक्य में 4
चांद लग जाते हैं। तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। तो पहली सावधानी हमने देखी कि भाई मुहावरे का प्रयोग करते समय वह मुहावरा असली रूप में ही लिखना चाहिए, उसके शब्द हम बदल नहीं सकते। जैसे कि अक्ल का दुश्मन, तो अक्ल का दुश्मन ही लिखना चाहिए, उसकी जगह बुद्धि का शत्रु, अक्ल का शत्रु हम लिख नहीं सकते। दूसरी सावधानी है कि मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग नहीं। कोई भी चीज वस्तु है किसी वस्तु के साथ ही अच्छी लगती है, इसी तरह मुहावरे है वह भाषा में वाक्य के साथ ही शोभते हैं, उस अलग लिखने से वह अच्छे लगते नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि वह छोटा बच्चा यानी कि वह छोटा बालक बड़े बड़ों के कान काटता है, सिर्फ कान काटना हम नहीं लिख सकते। तीसरी सावधानी हमने देखी कि मुहावरे के प्रयोग के समय परिस्थिति, घटना, पात्र, प्रसंग इन सबका उल्लेख होना आवश्यक है। जैसे कि शेर को देख के हिरण 9 2 11 हो गया, यानी कि शेर एक शिकारी है, हिरण उसका शिकार है, हिरण उसका पक्ष है, उसका भोजन है। तो हिरण शेर को देख के वहां से भागेगा ही, तो शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए वहां से 9 2 11 हो गया। चौथी सावधानी हमने देखी कि मुहावरे का एक अलग ही रूप होता है। सब जो भी भाषा है उसमें सामान्य हम वाक्य लिखते रहते हैं, उससे इसका कुछ अलग ही, कहते कुछ है, लिखते कुछ है और उसका अर्थ भी कुछ अलग होता है। जैसे कि आग में घी डालना, यह हमने लिख दिया, अब इसका अर्थ हम देखें तो आग में घी डाल के आग को भड़काना, लेकिन यहाँ पे हमें आग में घी नहीं डालना बल्कि किसी के क्रोध को भड़काना, किसी गुस्से वाले व्यक्ति का गुस्सा और बढ़ाना, उसे हम कह सकते हैं कि उसने आग में घी डाला। और पांचवी और आखिरी सावधानी है कि मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। एक ही मुहावरा है उसका एक ही वाक्य प्रयोग किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हम चाहे तो एक ही मुहावरे का अलग अलग रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 9 2 11 हो जाना, तो सिर्फ शेर और हिरण को ही नहीं ले सकते। पुलिस को देख के चोर 9 2 11 हो गए, यानी कि पुलिस के पास वह पकड़ जाने के डर से वहां से वह भाग जाता है। वैसे भी हम कह सकते हैं कि रफू चक्कर हो जाने, यानी कि वहां से भाग जाना। यह रही 5 सावधानी, व्याख्या और उसके कुछ उदाहरण। आप घर पे भी इसका पुनरावर्तन कीजिएगा, वीडियो बार बार देख के हाईलाइट करते रहना। આ આપણો પહેલો લેક્ચર, પહેલો ટોપિક અહીંયા પૂરો થાય છે। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજો ટોપિક લઈને આવશું। ધન્યવાદ।